اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کے منہ کھل گئے۔ LDA کو 65 اسکیموں کے لیے 1 ارب 78 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی فنڈ سے گلیاں پختہ، PCC ورک، ٹائل ورک ہوگا۔ زیادہ تر فنڈ شہر کے پسماندہ اور دیہی یونین کاؤنسلز پر خرچ کیے جائیں گے۔ کہنا، پرانا کہنا، حویلی، انم روڈ کی یونین کاؤنسلز شامل ہیں۔ واہگہ، پنگالی، ہڈیارہ، پانڈو کی، برکی کی یونین کاؤنسلز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح لیدر، شہزاد روڈ، روناوالا، UC 100، 98، 90، 89، 83، 82 بھی شامل ہیں۔ زرار شہید روڈ UC 191، 183، 182 اور 181 UC بھی شامل ہیں۔ در نایاب ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، لاہور شہر کے جو خاص طور پہ پسماندہ یونین کونسلز ہیں اور دیہی علاقوں میں شمار کی جاتی ہیں، وہاں کے ارکان اسمبلی کے لیے پنجاب حکومت نے ایک بڑی مہربانی کی ہے اور 2 ارب 78 کروڑ 10 لاکھ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ اور یہ فنڈ جو ہیں وہ ADP 2024-25 کی مد میں جاری کیے گئے ہیں اور یہ فنڈ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہوں گے۔ اگر میں بات کروں، اس میں جو زیادہ تر فنڈز ہیں وہ لاہور شہر کی مختلف یونین کونسلز میں ہیں اور یہ ٹوٹل ملا کے کوئی 65 اسکیمیں بنتی ہیں۔ اس میں اگر بات کی جائے تو یونین کونسلز جو ہیں اس میں PCC ورک ہوگا، ٹائل ورک ہوگا، گلیاں پختہ کی جائیں گی اور اس کے ساتھ سیور کا اگر کوئی کام ہے وہ کیا جا سکے گا۔ اور اس میں زیادہ تر وہ گاؤں ہیں جس میں اگر بات کی جائے لدڑ گاؤں ہے، کانا ہے، رونا والا ولیج ہے، پانڈو کی ہے، BRB کینال سے ملحقہ علاقے ہیں، اسی طرح آہلو گاؤں ہے، بمے جھگیاں والے علاقے ہیں زیادہ تر۔ اسی طرح جو ریہیبلیٹیشن ورک مختلف کنٹونمنٹ ایریا کے بھی مانگے گئے تھے، جس میں زرار شہید روڈ ہے، اس کے لیے بھی یونین کونسل 82، 83، 89، 90، 98، 99، 100 اس طرح کے بہت ساری یونین کونسلز ہیں جو اس اسکیموں میں آئیں گی تاکہ یہ فنڈ یوٹیلائز کر کے اس کو ختم کیا جائے اور جو تعمیراتی کام ہے، ترقیاتی کام ہے ارکان اسمبلی کے وہ ہو سکے اور اس حوالے سے LDA کی بھی ایک اچھی ریپوٹیشن اوپر پنجاب حکومت کو جائے اور علاقے جو دیہی علاقے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کے رہنے والوں کا سانس ملے۔ جی کا سانس ملے۔ بہت شکریہ در نایاب۔ سرکاری اسکولوں کے بجٹ میں اضافہ، بجٹ 1000 روپے فی طالب علم سے بڑھا کر 50 لاکھ فی اسکول کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فنڈز اساتذہ کی ٹریننگ، معمولی تزئین و آرائش پر خرچ کیے جا سکیں گے۔ فنڈز چوکیدار اور نائب قاصد کی عارضی ریکروٹمنٹ پر بھی خرچ ہو سکیں گے۔ فنڈز اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں فراہم کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جنید ریاض۔ جی جنید، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی، اسکولوں میں طلبہ کا 1000 روپے بجٹ جو ہے وہ بڑھا کر فی اسکول جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پہلے جو ہے فی طالب علم 1000 روپے فی سماہی کا جو ہے وہ اسکول کو ادا کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے سالانہ بجٹ جو ہے وہ اسکولوں کا، جس کو نان سیلری بجٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ 50 لاکھ روپے کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ بجٹ جو ہے وہ اسکولوں کی تزئین و آرائش اور جو کلاس رومز ہیں ان کی تعمیر و مرمت اور اس کے علاوہ جو معمولی کام ہوں گے وہ کیے جا سکیں گے، اور اس کے علاوہ سائنس لیب اور کمپیوٹر لیب کی اپ گریڈیشن کے علاوہ جو ہے جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں وہ بھی ان فنڈ سے رکھے جا سکیں گے۔ یہ فنڈ جو ہیں وہ نان سیلری بجٹ کی مد میں جو ہیں وہ اسکولوں کو جاری کیے جائیں گے اور یہ فنڈ جو ہیں وہ اسکولوں کی تزئین و آرائش پہ خرچ ہو سکیں گے۔ اس سے قبل جو فی طالب علم 1000 روپے ادا کیا جاتا تھا وہ سماہی کی بنیاد پر جاری کیا جاتا تھا، لیکن وہ انتہائی قلیل ہونے کی وجہ سے اسکولوں میں جو انتظامی معاملات ہیں وہ چلانا مشکل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ اساتذہ کی جو CPD ٹریننگ ہوگی ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ فنڈز جو ہے اس پر خرچ کیے جا سکیں گے اور اس سے جو ہے وہ سرکاروں اسکولوں کا تعلیمی معیار بھی ہو سکے گا، تعلیمی معیار بہتر ہو سکے گا۔ بہت شکریہ جنید ریاض۔ تفتیش کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 سال میں ریٹائرڈ قابل تفتیشی افسران کو کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 1953 ASI سے انسپیکٹر رینک کے افسران کی کانٹریکٹ پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ لاہور سے 575 ASI سے انسپیکٹر رینک کے افسران کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے کا کیا متن ہے، علی ساہی سے جانیں گے۔ جی علی ساہی۔
बिल्कुल रिटायर्ड तफ्तीशी अफसरान के लिए अच्छी खबर है कि लाहौर समेत पंजाब भर में रिटायर्ड तफ्तीशी अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। गुज़श्ता 5 सालों में लाहौर से 575 से जबकि पंजाब भर में 1953 ASI से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान जो हैं वो रिटायर्ड हुए हैं। उनकी कैटेगरी करके भी तमाम रीजन्स को भिजवा दी गई हैं। IG ऑफिस की जानब से जो तफसीलात भिजवाई गई हैं उसमें A+ कैटेगरी, A कैटेगरी और B कैटेगरी के अफसरान की फहरिस्तें जो हैं वो भिजवाई गई हैं। RPOs, DPOs और CCP लाहौर को डायरेक्शन दी गई है कि इनसे रब्ता किया जाए और जो अफसरान दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने के लिए ख्वाहिशमंद हैं उनके इंटरव्यू करके शार्ट लिस्ट करके फहरिस्तें जो हैं वो IG ऑफिस को भिजवाई जाएँ। चूँकि तफ्तीश का मेयार इंतहाई नाक़िस है जिसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में मुलज़मान को सज़ाएँ नहीं हो रही, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी रिटायर्ड तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी खिदमात कॉन्ट्रैक्ट पर ली जाएंगी। उनका तमाम जो फहरिस्तें बनाई जाएँ और परफॉर्मेंस के मुताबिक इनके तमाम डिटेल्स IG ऑफिस को भिजवाई जाएँ। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कितने ASIs, कितने सब इंस्पेक्टर और कितने इंस्पेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके पुलिस और ट्रेनिंग स्कूल्स व कॉलेजेस में भिजवाया। अली साहिब बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक का केस, LDA की जानिब से लगाए गए टायर किलर्स के म्यार पर इजहार नाराजगी। शहर में LDA ने गैर म्यारी टायर किलर्स लगाए हैं, जैसे शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस समाअत का मजीद अहवाल बताएंगे। जी मलिक अशरफ, बताएगा क्या कहना था अदालत का? लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारक के मतलब केस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में टायर किलर जो कि LDA की जानिब से लगाए गए हैं उस पर उसके म्यार पर इजहार नाराज़गी किया है और करार दिया है कि ये गैर म्यारी लगते हैं। अदालत ने स्कूलों की बसें ना खरीदने पे भी इजहार नाराज़गी किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है कि ये स्कूल जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। जैसे शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो मसाजिद हैं इनका पानी, जो वज़ू का पानी है, इसको महफूज करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। और इसी वाले से हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज़ जो कि लाहौर में तैनात हैं और जो कमीशन है इसके फोकल पर्सन भी हैं। अली इजाज़, एक तो आपको तरक्की पे आपको मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक आप यू, डिप्टी डायरेक्टर बन गए, वेरी ग्रेटफुल जी, थैंक यू। और दूसरा बताएं कि आज की प्रोसीडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आज की प्रोसीडिंग बड़ी अच्छी रही। जज साहब की तरफ से गवर्नमेंट की यही जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपने लेवल के ऊपर इसके ऊपर जो है इक़दाम करे। उसके अलावा उन्होंने कुछ पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन किए हैं जिसमें हाउसिंग को उन्होंने डायरेक्शन दी है कि वो जो एवोल्यूशन वाटर टैंक्स हैं उसके पानी को महफूज करने के लिए और उसको इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए एक पॉलिसी वाज़ह करे। ये बताएं कि ये तो आपको क्रेडिट आपको जा रहा है क्योंकि हमेशा एनवायरनमेंट की जो परफॉर्मेंस थी उस पर अदालत मुतमिन नहीं होती रही जब तक आप नहीं आ रहे थे। अब अगर अदालत ने मुतमिन हुई है, इजहार किया है कि भट्टों की जो आलूदगी है उस पर काबू पाया जा रहा है, तो क्रेडिट तो आपको भी जाता है। देखें, कंबाइन एफर्ट थी और DG साहब ने इस ऑपरेशन को सारे को लीड किया है और इसमें पूरी पंजाब की जो हमारी फोर्स थी उसने मिलकर एफर्ट की है। तो ये DG साहब की क़यादत की बदौलत ही हो सका है कि हम इसको एक कंबाइन एफर्ट के तौर पे पूरे पंजाब में कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज़, लाहौर में तैनात हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। और अब बात शहर के मौसम की। मतला अबर आलूद है और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। जेल रोड पर बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जा सकता है। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। जेल रोड पर बूंदाबांदी हो रही है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे कहीं पे बूंदाबांदी है, कहीं पर सूरज है, कहीं पर बादलों की आंख मचोली इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात के शहर में मजीद बारिश की पेशगोई और यही कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों में वक्फे से शहर में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जा सकता है। मायदा से हमारा राब्ता हुआ है। जी मायदा, बताइएगा मौसम का हवाल। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो अपनी अटकेलियां दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले धूप थे और अभी बादल देखने में नजर आ रहे हैं और इसी तरह से सुबह से हम देख रहे हैं कि बारिश के इम्कानात जिस तरह से बताए जा रहे थे। अभी 5 से 7 मिनट पहले यहाँ बूंदाबांदी हल्की जो है वो बूंदे देखने में नजर आई पानी की और ऐसा लग रहा था कि बस अभी बादल जो है वो बरस जाएंगे। लेकिन जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है
कि बारिश के जो है वो 55% अमकान जाहिर किए गए हैं, लेकिन अभी तक बादल जो है वो खुल के बरसे नहीं है शहर लाहौर में। और बादल देखने में तो वैसे नजर आ रहे हैं, बादल और सूरज के दरमियान आंख में चोली का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इंतजार ये है कि कब ये बादल बरसे और कब जो है वो शहर का दर्जा हरारत उसमें कमी थोड़ी देखने में नजर आए। ओवरऑल दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 31 डिग्री वैसे तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन 32 से 33 तक जाने के अमकानात जाहिर किए गए हैं और कम से कम जो है वो 27 तक जो है वो जाने के अमकानात जाहिर किए जा रहे हैं। शहर में वक्फे से हवाएं भी चल रही हैं, जिससे थोड़ा सा मौसम जो है वो जब हवाएं चलती हैं तो थोड़ा सा खुशगवार दिखाई देता है, लेकिन उसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो 55% अमकान जाहिर किए गए हैं उसका इंतजार है कि बारिश हो शहर में और दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नजर आए और शहर का मौसम थोड़ा सा खुशगवार दिखाई दे। मौसम खुशगवार दिखाई दे। बहुत शुक्रिया माहिदा, हमारे साथ अहवाल बता रही थी। कैंप जेल के कैदी का सर्विसेज अस्पताल से फरार होने का मामला। थाना शादमान में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा DSP जुडिशल विंग लाहौर बाबर अली की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज कैंप जेल का कैदी एहसन नामी, जिसको CT स्कैन के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया था, वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, जिसका DSP जुडिशल की जो मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 कांस्टेबल इमरान और उसके साथी ने जो एहसन को हथकड़ी के बगैर ला रहे थे, अचानक उनसे छुड़वाकर फरार हो गया और रेस कोर्स पार्क में दाखिल हो गया, जहां से वो मजीद किसी जगह पे गायब हो गया है। अभी तक पुलिस की जानब से इसमें कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई, ना ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अलबत्ता जिन एहलकारों की जानब से गफलत का मुजाहरा किया गया था, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानब से छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी, सार्फिन की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद चीनी ही दस्तयाब नहीं है। चीनी के टेंडर ताहाल नहीं हो सके, सप्लाई तो दूर की बात है, इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद क्या कहती है इंतजामिया इस हवाले से, शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी और उसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जिसके बायस आम सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा देखा जा रहा है। शहर में गुज़श्ता 2 महीनों से चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं है और जो भी सार्फिन चीनी की खरीदारी की गरज से आ रहे हैं वो खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं और इंतज़ामिया से यही बार बार इस्तफसार करते हुए पाए जाते हैं कि चीनी आखिर कब आएगी और अब तक क्यों नहीं आई। छोटी ईद के बाद ताहाल चीनी का स्टॉक जो है वो शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा अगर हम आटे की बात करें तो आटा भी ओपन मार्केट के मुकाबले में आम सार्फ के लिए बहुत महंगा है। आटे की कीमत आम सार्फ के लिए 10 किलोग्राम के थैले की जो कीमत है वो 1500 रुपये रखी गई है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 20 किलोग्राम का थैला 1750 रुपये में बाआसानी दस्तयाब है। अलबत्ता जो बिस्प के सार्फिन हैं उनको जो आटा और चीनी है वो सस्ती मिल रही है, लेकिन बिस्प के सार्फिन की तादाद यूटिलिटी स्टोरों पर बहुत कम है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे मेरे अकब में यूटिलिटी स्टोर के अंदर कोई गाहक मौजूद नहीं है। कोई इक्का दुक्का गाहक यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं और वो भी चीनी की अदम दस्तयाबी की वजह से ख़रीदारी किए बगैर ही वापस लौट जाते हैं। इसलिए सार्फिन ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर हुकूमत एक तो अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी कम की जाएं, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो यूटिलिटी स्टोर हैं ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाए गए हैं ताकि जिनकी आमदनी है कम है वो यहाँ से बआसानी ख़रीदारी कर सकें। अगर यहाँ पे भी शायद ज़रूरिया ओपन मार्केट के मुकाबले में महंगी मिलनी है तो फिर यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए की सब्सिडी देने का कोई मकसद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली।